online education. Myself Snehal Vishal Bhavsar from Varshanagar, Mumbai Public School, Vikroli. I am craft teacher is there. Let's begin our session. Welcome to all of you. Bruhan Mumbai Mahanagar Palika Education Department, online education, English medium, class 6. Today's subject is work experience. Today's date 9 January 2021. My name is Snehal Vishal Bhavsar. Students, can anyone tell which festival is going to come now? Teacher, Makar Sankranti. Yes, Makar Sankranti. And in that festival, what we do on Makar Sankranti? Students, what we do on Makar Sankranti? We are flying the kite. Yes, very good. So, let's start our session. Today's topic is kite making. Today's thought of the day: imagination is the highest kite one can fly. Let your imagination fly high. मतलब जो आपका इमेजिनेशन है वो काइट की तरह आप हाई फ्लाई कर सकते हैं. ओके. Now I will show you some kites. See, here it is butterfly or bird kite. Second is square shape kite, and third one is also triangle shape and fish shape. Learning outcomes, skill-based learning. Student tried to create new things. Students correlated with available resources. Today's topic is kite making, and material is kite paper, bamboo sticks, scissor, glue, and thread. Knowledge about color contrast, identify different shapes of kite, create happiness while making things on his own, develop self-confidence. Now, before we start, we get some information about Makar Sankranti. Makar Sankranti is also known as Kite Festival. Do you know, all of you? Makar Sankranti is known as Kite Festival. Makar Sankranti is a Hindu festival generally celebrated on 14th of January every year. Sometimes it comes on 15 January. It is a major harvest festival celebrated in various parts of India. This festival unites all. We distribute Tilgu laddus, especially in Maharashtra. It is known as Khichdi in Uttar Pradesh, Uttarayan in Rajasthan and Gujarat, Pongal in Tamil Nadu, and Magha Bihu in Assam. This festival is celebrated to welcome the transition of sun in Capricorn. It is also known as the Kite Festival because on this day people fly bright colorful kites as an offering to the sun god. On this day, sky is filled with colorful kites.
Now we learn about history of kites. काइट के बारे में कौन सा हिस्ट्री है वो अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा. Kites are thought to have originated in China about 3000 years ago. In India, the kite changed into the fighter kite known as the patang. Kite is made from paper, silk cloth, bamboo sticks. Kite are very popular in India with the state of Gujarat, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Rajasthan, Tamil Nadu and Punjab known for their kite fighting festivals. Paper and bamboo kites are flown from the rooftops while using line friction in an attempt to cut each other's kite lines. An international kite festival is held every year before Uttarayan for 3 days in Vadodara, Surat and Ahmedabad. आप भी सब लोग देखो काइट जब फ्लाई करते हैं तब एक दूसरे का काइट आप कट करने के लिए कोशिश करते है ना. उसी तरह सब जगह पे काइट फेस्टिवल मनाया जाता है. उसमें एक दूसरे के साथ काइट को फ्लाई करने का कंपटीशन होता है. Here different types of kites. See, here it is smiley face kite. Then it is angry birds kite. It is butterfly kite. It is also bird kite. And this is simple square shape kite. Means kite are very different shapes. You can make it your own. लेकिन जब हम देखो काइट फ्लाई करते हैं तब हमें कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है. जब आप काइट फ्लाई करते हैं तब हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए क्योंकि सब जगह पे हमें अगर सेफ काइट फ्लाई करेंगे तो उतना आपको भी अच्छा ये होगा और उसका काइट फ्लाई करने का आपको अच्छे से आनंद भी मिलेगा उसमें से. We must follow precautions while flying kite. से यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए हैं. डोंट फ्लाई क्लोज टू रोड, डोंट फ्लाई नियर पीपल स्पेशली यंग चिल्ड्रन. जब आप काइट फ्लाई करते हैं तब रोड के साइड में आपको फ्लाई नहीं करना है और आपको पीपल्स जहाँ पे रहेंगे और जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं वहां पे आपको काइट को फ्लाई नहीं करना है. लैंडिंग अ काइट इन अ रोड कुड कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट. जहाँ पे रोड पे देखो सब जगह पे व्हीकल्स रहते हैं वहां पे आपको काइट को फ्लाई नहीं करना है और लैंड नहीं करना है. कीप क्लियर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस एंड टीवी एंड रेडियो एरियल्स. जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वायर रहते हैं वहां पे आपको काइट को फ्लाई नहीं करना है. डोंट फ्लाई नियर एयरपोर्ट्स. जहाँ पे एयरपोर्ट है वहां पे भी आपको काइट को फ्लाई नहीं करना है क्योंकि उसमें एयरपोर्ट में एरोप्लेन्स को प्रॉब्लम होता है. डोंट फ्लाई योर काइट इन विंड स्ट्रॉन्गर देन रिकमेंडेड. जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है वहां पे भी आपको काइट को फ्लाई नहीं करना है. नेवर फ्लाई इन स्टॉर्मी वेदर. ऑलवेज वेयर ग्लोव्स व्हेन फ्लाइंग अ हार्ड पुलिंग काइट. जब आपको काइट फ्लाई करना है तब आपको क्या करना है, हाथ में आपके ग्लोव्स आप पहनना है. अगर आपने ग्लोव्स पहना होगा तो आपको उतना इजी हो जाएगा और आपको वो काइट का धागा जो है वो थ्रेड आपको हाथ में लगेगा नहीं और आपके उंगलियों में कट नहीं होगा. वॉच आउट फॉर रॉक्स एंड होल्स व्हाइल रनिंग विथ योर काइट. जब आप काइट को लेके भागते हैं तब आपको जहाँ पे भी पत्थर है कहीं पे खड्डे रहते हैं वहां आपको देखना है. इसका मतलब आपको काइट फ्लाई कहाँ पे करना है,
बताओ मुझे कोई, इतने सब प्रिकॉशंस बताए हैं. कैन एनीवन टेल वेयर वी कैन फ्लाई काइट? Ma'am, may I? Yes. We can fly kite in freely area. Okay, right. Means we can fly kite in open place, जहाँ पे ग्राउंड रहता है, ओपन ग्राउंड रहता है, वहां पे आपको काइट को फ्लाई करना है. टेरेस पे, आपके यहाँ पे अगर टेरेस रहेगा तो टेरेस पे या रोड पे आपको फ्लाई नहीं करना है. जहाँ पे भी ओपन ग्राउंड है वहां पे आपको काइट को फ्लाई करना है. ओके. नाउ दिस इज स्लोगन. प्ले हार्ड बट प्ले सेफ. नथिंग स्टॉप द फन फास्टर देन एन इंजुरी. मतलब आपको जितना अच्छे से खेलना है उतना आप खेल सकते हैं, लेकिन आपको सेफली खेलना है फ्लाइंग को, क्योंकि कोई भी आपको रोक नहीं सकता. सिर्फ आपको अगर इंजरी हो गई तो आपको रुकना पड़ेगा. इसलिए जब भी आप काइट फ्लाई करेंगे तो आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस याद रख के फिर आपको काइट को फ्लाई करना है. ओके. Now we will start making the kite. Let's start our kite making. See, here it is. Require material: kite paper, scissor, fevicol or glue, and bamboo sticks. One can longer and other we need to short. Glue and scale and pencil. Cut out a 3 piece of paper, orange, white, green. The measurement of each piece should be 30 centimeter and 10 centimeter. जहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ऐसे कट करके मैंने पेपर्स रखे हैं. अब हमें आपको जितना डिस्टेंस लेना है आप ले सकते हैं इसमें मेजरमेंट. यहाँ पे मैंने 30 बाय 10 का लिया है. 3 पीस सेम आपको शेप में कट करके लेना है. और यहाँ पे stick all 3 pieces with each other. Apply the glue at bottom. Don't use too much glue because this paper is very thin. This paper is very thin, so don't apply so much glue. यहाँ पे हम अच्छे से उसको स्टिक करके लेंगे. पेपर में कहीं पे भी आपके पेपर श्रिंक नहीं होना चाहिए. सेम प्रोसेस हम ग्रीन पेपर के साथ भी करेंगे. Here also apply the glue. Don't apply so much glue. पेपर को एकदम धीरे से आपको ये करना है क्योंकि ये बहुत पतला पेपर रहता है. अभी अपना स्क्वायर शेप मिल गया. इसको 2 मिनट सूखने के लिए हम लोग ये करेंगे, रखेंगे साइड में. Then fold the paper to get center of one side of paper. यहाँ पे हमें क्या करना है, पेपर को फोल्ड करके सिर्फ कॉर्नर में प्रेस करना है. मतलब हमें मिडल पार्ट यहाँ पे सेंटर मिलेगा. पेपर का जो मिडल है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा. And fold another side also and just press the corner. Again we get middle of paper. Now we get 4 middle point of both side. Join the middle point using the scale. यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल के हेल्प से लाइन को ड्रॉ करना है. लेकिन लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है, वो लाइन दिखना नहीं चाहिए पेपर पे. एकदम हल्के हाथ से आपको ड्राइंग करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है. Then fold the paper and cut on the line. जहाँ पे आपका पेपर के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ किया है वहां पे आपको क्या करना है,
सीजर से कट करना है। कट करते समय आपको बराबर लाइन के ऊपर ही कट करना है। यहाँ पे भी आपको अच्छे से कट करना है क्योंकि पेपर बहुत थिन है ये, तो धीरे धीरे और अच्छे से आपको यहाँ पे कट करना है लाइन के ऊपर। यहाँ पे आपको घाई नहीं करना है, धीरे धीरे आप पेपर को कट करेंगे। दोनों साइड जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके लिया है वहां पे भी सेकंड लाइन भी हम यहाँ पे कट करेंगे। लाइन जो है वो एकदम लाइट ड्रॉ किया है, मतलब दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको दिखना चाहिए वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ किया है। Now we will get square shape in proper tricolor। यहाँ पे हमें ट्राई कलर का स्क्वायर शेप मिला है, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। अब हम यहाँ पे स्मॉल पीसेस जो है वो हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हैं, क्योंकि हमें ये काइट के इसमें जो स्टिक है वो बाम्बू स्टिक यहाँ पे हमें पेस्ट करने के लिए स्मॉल पीसेस चाहिए। जब हम ये बाम्बू स्टिक को जब फोल्ड करके लगाएंगे तब हमें यहाँ पे स्टिक के लिए स्मॉल पीसेस चाहिए। Now to get the curve shape, tie the long bamboo stick with thread from both ends। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग स्टिक है अपना वहां पे हमको थ्रेड से यहाँ पे हम बांध के लेंगे, क्योंकि हमें बराबर प्रॉपर कर्व शेप यहाँ पे मिलेगा। Check the shape on the paper and keep it tied properly। Take care of because sometimes stick will broken। अच्छे से आपको इसको बांध के लेना है, मतलब और चेक करना है जहाँ पे आपका काइट का राउंड शेप होने वाला है वहां पे प्रॉपरली स्टिक को आना चाहिए। कौन सा भी धागा यूज करके आप इसको बांध के रख सकते हैं, मतलब हमें यहाँ पे कर्व शेप मिलेगा। नाउ कीप इट साइड। यहाँ पे हम उसको सूखने के लिए थोड़ी देर बांध के रखा है वो साइड में रखेंगे। अभी शॉर्ट आपको लेना है, ये शॉर्ट बाम्बू स्टिक लेके पुट इट वर्टिकली एंड चेक द साइज एंड कट आउट एक्स्ट्रा पार्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है पेपर के बाहर अगर ज्यादा स्टिक बची है तो उसको हमें कट करना है। आप सीजर से या कटर से भी कट कर सकते हैं या फिर हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया है। अगेन वी चेक साइज। नाउ अप्लाई द ग्लू ऑन द स्टिक एंड paste it on paper। This stick we paste vertically। Press it very carefully।
Now, remaining paper, we use that square shape on the top side of kite because it holds the stick. We cut some small piece of square. यहाँ पे अपना स्टिक जो है वो निकलना नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर शेप का छोटा सा पीस पेस्ट करेंगे. जो ऑरेंज कलर है उसके बाहर हमारा ये पेस्ट किया हुआ ये दिखना नहीं चाहिए, इसलिए साइज एक बार चेक करके पेस्ट करना है. और इसमें भी आपको ज्यादा ग्लू यूज नहीं करना है. ये पेपर पे एकदम थोड़ा थोड़ा ही ग्लू यूज करना है. नाउ यहाँ पे हमको नीचे ग्रीन कलर का पेपर लगाना है, तो वो हम यहाँ पे कट करके रख सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा उसको पेपर भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ. यूज द ग्रीन पेपर टू पेस्ट इट इन ट्रायंगुलर शेप एट बॉटम ऑफ काइट. ये हमने पेपर को करके कट करके रख दिया है साइड में. नाउ टेक द स्मॉल पीसेस. जो हमने स्मॉल पीसेस कट करके रखे थे वो हमें यूज करना है यहाँ पे. थोड़ा थोड़ा इसमें भी ग्लू यूज करेंगे और बैक साइड में यहाँ पे हम इसको स्टिक करके लेंगे. सेम कलर का आपको पेपर यूज करना है. वेयर दैट इज white color, we use white paper, and where it is orange color, we use orange color pieces. सेम कलर यूज करेंगे तो आपका शेड में चेंज नहीं होगा और अलग से आपका ये नहीं दिखेगा. अभी बोथ साइड ऑल्सो वी पेस्ट स्मॉल पीस ऑफ ऑरेंज पेपर. If you want, you take you paste additional paper also. एडिशनल पीस भी आप वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, लेकिन 4 पीसेस यहाँ पे इनफ है. Now take the curve shape bamboo stick and paste on kite. शेप आपको एक बार चेक करना है और ग्लू अप्लाई करके यहाँ पे हमें स्टिक करना है. यहाँ पे हमें व्हाइट पेपर का जो हमने पीस कट किया था वो स्टिक करके लेंगे. देन ऑरेंज पेपर. अगर आपका ऑरेंज पेपर जो है वो व्हाइट के ऊपर दिख रहा है तो कट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ पेपर. बिकॉज आपका जो व्हाइट पेपर है वहां पे आपका ऑरेंज शेड नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा का जो है वो कट किया है. यहाँ पे अगेन वी पेस्ट इट प्रॉपरली. Now another side also we paste
Again, we check the size of paper. It is extra. And white paper also we paste it on stick. If you want, you use additional pieces of paper. I'm using here 4 pieces of paper. And now let it dry for some time. अगर आप इसको अभी कट करेंगे तो वो निकल जाएगा, इसलिए अभी वो थोड़ा सा उसको ड्राई होने के लिए हम साइड में रखेंगे. जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम लोग ग्रीन पेपर जो है यहाँ पे हम उसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा ये करेंगे साइड में. और जो ग्रीन पेपर का हमने ये ट्रायंगल का स्क्वायर शेप कट करके लिया था, उससे हमें बीच में से फोल्ड करना है. एंड पेस्ट हियर in triangular shape. Apply glue. Don't use too much glue. Now paste it here in triangular shape. चेक करना है यहाँ पे आपको, अगर स्टिक आपका ये नहीं हुआ है, यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे स्टिक के ऊपर ग्लू लगा के वापस पेस्ट करना है. Now to make it more attractive, we can use the tricolor strips. Cut out orange color strips, white color strips, and green color strips. For the kite tail, you can use also the other things also you can use. You can use ribbon, satin ribbon, or cloth. Here our kite is tricolor, so I use tricolor strips. Same size, we cut green color strips. If you want, you can use ribbon, satin ribbon also. And size also you can make it long or short. If you want, you can make long strips. Otherwise, you can use short strips. Now, white color paper. Here we cut white color strips. जो आपका पहले वाला पेपर एक्स्ट्रा का था, उसमें से ही ऑरेंज और ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स कट किए. एंड व्हाइट कलर के लिए पेपर में से यहाँ पे स्ट्रिप्स कट करके लेंगे. Ribbon will be heavy because ribbon's weight is heavy. तो यहाँ पे पेपर जो है वो अपना पेपर जो है वो बहुत लाइट वेट है. You can use small piece of paper.
I use here two strips on each color, 2 piece of orange color, 2 piece of white color, and 2 piece of green color. If you want, you can use more, or if you want, you can use one strips also. यहाँ पे आपको टेल के लिए आपको जितने चाहिए उतने आप स्ट्रिप्स को यूज कर सकते हैं. सबको दिख रहा है ना? हेलो. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now here it is ready, but here it is some of the small and some of the long, so we cut in same length. Some strips are very long and some strips are short. We cut extra and make it properly same size. Now stick the tail. If you want, you can stick here also, and if you want, you can stick you can paste it on back side also. When you can stick, आपको कलर का देखना है बराबर, ट्राई कलर प्रॉपरली है कि नहीं. नाउ इट इज ड्राई, check for it and cut the thread. When we cut the thread, यहाँ पे देखो हमारा थोड़ा सा पेपर ये हो रहा है, तो हम इसको एक्स्ट्रा पेपर भी यूज कर सकते हैं. To hold it properly, you can paste additional paper also. जो हमने स्ट्रिप्स कट करके रखे थे व्हाइट कलर के, उसको हमें यूज करना है. कट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्टिक. हाथ से आप इसको कट करके एक्स्ट्रा जो है वो निकाल सकते हैं. यहाँ पे वो स्टिक जो है वो थोड़ा सा ओपन हो रहा है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक्स्ट्रा जो अपना पीसेस बना के रखे थे, स्मॉल पीसेस, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. बिकॉज पेपर इज वेरी थिन एंड स्टिक वेट इज, यहाँ पे देखो हमने जो एडिशनल यहाँ पे पीसेस ऐड किए थे वो स्टिक करेंगे. सेम व्हाइट कलर ही यूज करना है. Stick is curve shape, so it can be open. यहाँ पे हमें धीरे से एक्स्ट्रा जो है वो पेपर यहाँ पे ऐड करना है. Stick it properly. थोड़ी टाइम इसको पकड़ के अच्छे से सूखने दो, क्योंकि पेपर बहुत ये पतला है और जो स्टिक यहाँ पे यूज किया है बैम्बू स्टिक वो थोड़ा सा जाड़ है,
तो कर्व शेप में होने के कारण उसको थोड़ा स्टिक करने में टाइम लगता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो हमने सिर्फ एक साइड में लगाया है बिकॉज सेकेंड साइड इज ओके। देर इज नो नीड टू additional part stick in another side. Now here also we cut extra part of bamboo sticks. इसको हम हाथ से भी कट करके निकाल सकते हैं। सिर्फ हाथ से कट करते हुए ध्यान देना है थोड़ा सा, आपके हाथ में स्टिक लगना नहीं चाहिए। Now our kite is ready back side also, but आपको काइट फ्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके पीछे थ्रेड ये करना रहता है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा और उसको डेकोरेट करने के लिए पेपर के स्ट्रिप्स कट करके लेंगे। काइट के बोथ साइड we attach some strips also. Again we use tricolor strips. सीक्वेंस आपको बराबर रखना है, जैसे आपने नीचे की तरफ लगाया है ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, सेम सीक्वेंस में कट करना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा पेपर बचा था उसमें से स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। सो डोंट थ्रो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ पेपर। We can also use it other side also. No need to cut full size of paper. Here extra pieces are there, so we can use it. Again we can cut orange paper in 2 strips. And white paper also 2 strips. Here also you can paste more pieces also. If you want, you can paste 2 pieces or 3 pieces of each color. डेकोरेशन आपको जैसे आपको पसंद आएगा वैसे आप डेकोरेट कर सकते काइट को। आपको अगर चाहिए तो आप फ्लावर्स लगा सकते हैं या साइड में ये स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, but don't use too much decoration because kite will otherwise kite will heavy and it's not fly properly. जितना आपका लाइट वेट रहेगा काइट उतना अच्छे से फ्लाई होगा। ये पेपर का वही रीजन है यूज करने के लिए काइट के लिए, बिकॉज इट इज वेरी थिन पेपर। एंड आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, देखो कि जो स्मॉल ज्यादा हेवी ये नहीं रहते वो आराम से स्काई में फ्लाई हो सकते। अगर हेवी रहेगा तो फ्लाई नहीं हो सकता, इसलिए काइट पेपर मोस्टली यूज करते। Here ready our strips. Again we check length of strips and cut it same size. I am using here one piece of strips. If you want, you can use more also. Now
stick it both side of kite. यहाँ पे आप कौन से भी एक साइड से इसको स्टिक कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो नीचे स्ट्रिप्स लगाए उसका आपको सीक्वेंस बराबर रखना है। नीचे भी हमने देखो राइट साइड में यहाँ पे ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन रखा है, उसी तरह हमने दोनों साइड भी हम लोग सेम रखेंगे सीक्वेंस, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। You can also make it another other colors also. If you want, you make it other colors, 2 colors or 3 colors or 4 colors you can use. यहाँ पे बाकी के चीज बाजू में करके रखती हूँ, आपको काइट दिखेगा अच्छे से। एक सेकेंड ना। यहाँ पे अपना काइट जो है वो रेडी हो गया है। इसमें आपको चाहिए तो आप थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। जो अपना काइट था वो अपना रेडी हो गया है और यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे देखो मैंने धागे से, यहाँ पे धागे को अटैच किया है। आपको जो मांझा रहता है वो अटैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम इस तरह से थ्रेड को ज्वाइन करते हैं। इसको आप यूज करते समय अगर आपके पास कुछ भी होल वाला ये रहेगा, उससे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे होल बना के we can tie the thread and then we can use this manja. Don't use this glass coated because it is harmful. It can be cut your fingers, so don't use glass coated. Here our kite is ready. You can also make different types of kites. Here it is Pikachu. Which shape is there? Can anyone tell? Which shape is there? Here it is the see a smiley face. I can decorate it Triangular. with smiley face. Triangular, yes, right. And you can also cut from this side. यहाँ पे जो है आप कट करके उसको अलग अलग शेप्स में रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं अलग से। यहाँ पे मैंने पिकाचू के जैसे, आप सबको पिकाचू मालूम है ना, कार्टून देखते हैं सब लोग। तो यहाँ पे हमने पिकाचू के शेप में ये काइट किया है। आपको डेकोरेशन के लिए आप कैसे भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये कौन है बताओ? कैन एनीवन टेल which cartoon is this? Ma'am, Angry Bird. Angry Birds, yes, right. This is Angry Birds kite. Then it is also simple square shape. Ma'am, square shape. It is simple square shape. And size is also, you can make small size also.
If you want, you can use small size. Otherwise, you can use big size also. Nowadays, some kites are made from plastic paper. This is which cartoon? Boys, students, tell me. Which cartoon is this? Ma'am, Spider-Man kite. Yes, it is Spider-Man kite. But nowadays it is available in market in plastic also. But don't use plastic kite because plastic is not disposable, and so don't use it. Mostly you can use paper kite because it is very good for your our environment. Okay. Now, one second. Any doubt you can ask. Anyone have doubt in kite making? If you have any questions, you can ask. Now, all of you understand how to make kite? Students, all of you understand how to make kites? Hello? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है Yes, मेरी? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. किसी को डाउट है कुछ काइट मेकिंग में? किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. Okay, thank you. Now, here, if you don't want to make kite, then you can decorate your house with different types of kites. Here, we can decorate our house by garland of kite, or this is toran of kite. Small pieces we cut in triangular kite shape and stick it on thread. You can decorate your house on this Makar Sankranti. You can decorate it also using this garland and toran. Now today's assignment for you: make attractive kite with proper decoration with available material at home. जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल रहेगा घर पे, उससे आप डेकोरेटिव काइट्स बना सकते, और वो आपको बना के आपके क्लास का जो ग्रुप है वहां पे आपको सेंड करना है. जो फोटोज है आपके काइट्स के, वो आपके यहाँ पे जो टीचर है आपकी, उनके ग्रुप में आपको सेंड करना है. दिस इज काइट रन. I will show you. You can also make like this. If you don't want to make big kite, you can make it small size and make like this toran and decorate your house. ऐसे तोरण आप बना के आपके घर को डेकोरेट कर सकते हैं. अभी देखो, कोविड के वजह से हम लोग ज्यादा बाहर ये नहीं कर सकते, तो अगर आप काइट फ्लाई करने के लिए अगर बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पे ही आपके हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने ऐसे भी गार्लैंड बनाए हैं. सिर्फ थ्रेड में काइट शेप को कट करके पेपर को स्टिक किया है यहाँ पे.
You can decorate also using this garland. Okay. Now we will end our session. Thank you for joining. Have a good day.